Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Okay, so welcome to this bridge course of mathematics. Okay, so the aim is for the bridge course is very simple. Just wait a minute. Hmm. The aim to get this bridge course done is very simple. I have conducted one test for bridge course where we have asked about logical reasoning, mathematics, English literature, and we have also asked about the physics basics and so on, which is the requirement of your BSc IT course, not just for the semester 1 but also for semester 2, semester 3, semester 4. You have the mathematics, and जैसे जैसे आपका सेमेस्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको और ज़्यादा मैथमेटिक्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. सो लॉजिकल रीजनिंग तो आपका सेम 1 में क्लियर हो जाएगा क्योंकि हम लोग लॉजिक पढ़ा ही रहे हैं. सो द रही बात क्या है, एक बेसिक थिंग मैंने जो पूछा था वो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. वो मुझे लगा कि थोड़ा आप में बहुत सारे लोगों ने वो टाइप के क्वेश्चन थोड़े कम अटेम्प्ट किए. सो आई हैव कम अप विद दिस दैट we will cover the basic concept of differentiation and integration so that you will feel very easy when you solve integration and differentiation, क्योंकि not in this sem but in the next sem, that is sem 2, sem 3, sem 4, you will need that differentiation and integration skill. That's why we have to come up first lecture. I am taking on differentiation. We will try to cover maximum from this differentiation, and then we will going to start with integration, and after the integration we will see. I may take the course on matrices depending on the time we have. Okay, so let us start with this differentiation. तो पहले differentiation क्या है? In the real life, we encounter many situations where one physical quantity depends on some other physical quantity. For example, there is something called as dependent variable, there is something called as independent variable. So position is a dependent variable. So आपका जो क्लॉक होता है एनालॉग क्लॉक होता है, लेट मी ड्रॉ इट. आपका क्लॉक होगा ये. तो डिपेंडिंग ऑन वेयर द मिनट हैंड इज देयर, वेयर इज द हावर हैंड, द पोजीशन ऑफ दिस टू विल डिटरमाइन व्हाट इज टाइम. यस और नो? अगर मैंने ये पोजीशन थोड़ा चेंज किया, so if I change some position, for example this hour hand will move to the some other value, that is say here minute hand is moved from this 12 o'clock to here. What will be the time change in time? Originally it was 3 o'clock, now it is changing to the which time? 3 hours 30 minutes. So the position of hour hand determine what is the time you want to see. ओके, सो हावर ये पोजीशन जो है वो डिपेंडेंट है, टाइम इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. टाइम रीडिंग ऑन द वॉल क्लॉक is dependent and angle moved at the hands of the clock. Again the same thing apply. When I have changed this angle of the hour hand, so if I change from here to here, the time will change from 3:30 to 3:35. so angle जैसे जैसे मूव होता है, एंगल इंडिपेंडेंट है, वैसे वैसे टाइम रीडिंग बदलता है. so this is how we can specify the dependent variable and independent variable. So let me erase this all. Okay. So this concept is mainly used in the functions. So functions क्या होता है? Function is sort of some machine. आपको machine पता है? What is the machine? For example, say I have mixer. I input that mixer. If I input wheat, so if I
input wheat in the mixer, I will get output as flour. So मैं चक्की में अगर गेहूं पीसूंगा तो मुझे आटा मिलेगा. ओके, सो मिक्सर क्या है? मिक्सर इज अ फंक्शन. तो फंक्शन के अंदर जो चला जाता है वो क्या होता है? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल चला जाता है, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल चला जाता है, और आपको आउटपुट जो मिलता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल मिलता है. सो दिस इज हाउ द फंक्शन डज. फॉर एग्जाम्पल, इन मैथमेटिक्स, suppose my function is say x square. If I input value of x is equal to 2, what is the output I am getting? If I input this into the function x is equal to 2 feed किया तो output क्या मिलेगा मुझे? Anyone? 4 will be the output. If I use the different inputs, say x1 is equal to say -5, I have inputted into this, what will be the output of y1? Output will be denoted by y. 25. पॉजिटिव इनपुट करो या निगेटिव इनपुट करो, आपका वैल्यू जो है पॉजिटिव ही मिलने वाला है. सो दिस इज द सिमिलर टेक्नोलॉजी, लाइक अ मिक्सर which inputs the wheat and then gives you the output of wheat flour. If you include the rice, you will get output as rice flour. You will input the corn, you will get output as a corn flour. So depending on what you input, you will get the output. Okay, so let us see further क्या होता है. So एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है. द फंक्शन इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स. एक्स को इनपुट बोलेंगे, वाई को आउटपुट बोलेंगे. तो एक्स क्या होगा आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. वाई क्या होगा आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. सो it is like a machine which take x as an input, performs some operation and gives y as a output. हमने वो y is equal to x square का फंक्शन देखा, how it will do. Example, y is equal to 2x दिया. What is input? If I take input x is equal to 1, tell me what is the output here? Output 2. Output y is equal to 2. If I take x is equal to 2, what is the output? Y is equal to 4. If I take x is equal to 3, what is the output? Y is equal to 6. So depending on input, my output changes. So output क्या होगा? Dependent होगा. Input क्या होगा? Independent होगा. ठीक है? Now consider in the real life situation क्या होता है. Suppose you have a point A and there is a car which has initial position at A, which is x naught, and this is initial time at t naught. From this position, suppose this car moves to the position B, where B क्या होगा? New position. What is the new position of car? x1. Say I'm saying x1, and say new time, मतलब कितना टाइम लगा उसको, that is t1. ठीक है. Then again it change to the third position where C point पे उसका पोजीशन होगा x2 and उसका टाइम लगेगा t2. ये जो चेंज हुआ x and b के बीच में, we denoted by dx1 by dt. So dx1 by dt क्या है? Derivative of, that is, I can write over here, change in x upon change in y, or change in t. This we denoted by dx1 upon dt. Similarly यहाँ पे क्या होगा? Change in x upon change in t. Change in t. This is क्या होगा? Derivative of x2 with respect to t. Okay. Now from A to B, change in distance कितना change हुआ? Distance x1 minus x0. Change in time कितना change हुआ? Time t1 minus t1. From B to C, how much change in the distance? x2 minus x1. Change in time कितना हुआ? t2 minus t1. So what I can say here,
my value of derivative, that is dx upon dt, will be equal to x1 minus x naught upon t1 minus t naught. यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ dx upon dt? The value of dx by dt here will be x2 minus x1 upon t2 minus t1. तो ये क्यों लगता है? Okay. Why this speed is important? Let me take the example here. Suppose ये जो distance है वो 5 किलोमीटर है. Suppose this distance is 5 kilometer and travel time is required is 1 hour. Here the distance is 10 kilometer and traveling time required is say 1.5 hour. तो आप मुझे बताओ कि कहाँ पे गाड़ी का स्पीड ज्यादा होगा, बिटवीन A to B और बिटवीन B to C? B to C. B to C ज्यादा हुआ. कैसे पता किया आपने? How you compare the two things? How you compare the two Time things? to speed up. मतलब आपने एक रेशियो चेक किया कि इतना टाइम लगेगा, यहाँ पे 1 आवर में 5 किलोमीटर जा रहा है, यहाँ पे 10 किलोमीटर जाने के लिए उस स्पीड से 2 आवर लगेगा, बट वो कम समय में जा रहा है, मतलब 1.5 आवर्स में जा रहा है, मतलब सेकंड में उसने फास्ट भगाया, ड्राइवर ने जो गाड़ी चलाया वो फास्ट भगाया. तो कैसे कंपेयर किया आपने? रेशियो से कंपेयर किया. व्हाट इज द रेशियो? चेंज इन द पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम. मतलब ये हम बोलते हैं कि स्पीड is equal to distance upon time. We write speed is equal to distance upon time. And अगर ये टाइम इंटरवल स्मॉल है, यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या है? 1 आवर है. इफ आई हैव टाइम विच मूविंग टू वेरी क्लोज टू जीरो, if we have the time which is moving to very close to the zero, we will define this as dx upon dt, that is very small change in the position upon very small change in the time, so that not just between the 2 point I can take out the derivative value at any point. यहाँ पे क्या दिखा रहा है? मुझे स्पीड कैलकुलेट करने के लिए मुझे 1 घंटा रुकना पड़ेगा. इतना टाइम है कि अपने पास कि 1 घंटा रुक के बाद में स्पीड काउंट करें? मुझे चाहिए कि ये सेकंड में मेरा कितना स्पीड है. तो ये सेकंड में कितना स्पीड है वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो रेशियो है वो फास्ट बनाएंगे. वो फास्ट कैसे बनाएंगे? जो टाइम इंटरवल है वो कम करेंगे, विच इज वेरी क्लोज टू द जीरो. जब टाइम इंटरवल कम करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? वैल्यू मिलेगा, डेरिवेटिव का वैल्यू मिलेगा. सो डेरिवेटिव, change in distance, small distance upon change in small time, you will get the derivative value. So this is the concept of derivative. So let us see in the next thing. Let me clear. Dx represents the change in distance and dt represents change in time. So the ratio will be dx upon dt. This is called derivative of x with respect to t, provided dt is very very small. Dt is very very small. So what is the derivative? Change of one quantity with respect to other quantity. So यहाँ पे मैं जब dx upon dt की बात कर रहा हूँ तो x मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है और t मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है. So I will write over here, x मेरा क्या बन जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, और t मेरा क्या बन जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो इन शॉर्ट द वैल्यू ऑफ x विल डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ t. ओके, एंड टाइम को कोई बदल नहीं सकता. मेरे लिए 1 सेकेंड है, वो तुम्हारे लिए भी 1 सेकेंड है. ऐसा नहीं होगा कि मेरे लिए 1 सेकेंड है तो तुम्हारे लिए 2 सेकेंड हो गए. इट इज इंडिपेंडेंट. बट मेरा चलने का स्पीड अलग है, आपका चलने का स्पीड अलग है. इसीलिए क्या होगा? मैं 1 सेकंड में जितना चलूंगा उससे आप कहीं ज्यादा चलोगे, क्योंकि आप मुझसे तेज चलते हो. ओके,
So that's why the distance will be dependent variable, whereas time will be independent variable. Okay. So this is called as derivative. So change of y with respect to change of x, we called it as dy upon dx. What does this mean? कि हर एक यूनिट डिस्टेंस पे y का वैल्यू कितना चेंज हो रहा है. ओके, x का वैल्यू अगर 1 यूनिट से बढ़ा है तो y का वैल्यू कितने यूनिट से बढ़ेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x. ओके, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर फर्स्ट ऑर्डर है. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. आइदर यू कैन रिप्रेजेंट y डॉट और यू कैन रिप्रेजेंट इट विथ y डैश. सो y डैश का वैल्यू क्या है? dy अपॉन dx, dy by dx. Next, what is second derivative? It is the derivative of फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. मतलब इसका जो भी वैल्यू मिलेगा उसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय d2y अपॉन dx स्क्वायर. ओके, इसको हम बोलते हैं नॉट जस्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. इसको हम बोलेंगे ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. इसको y डबल डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या y डबल डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. थर्ड डेरिवेटिव क्या है? जो आप सेकेंड डेरिवेटिव आपको मिलेगा उसको अगर आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. सिमिलरली आप हायर ऑर्डर के लिए भी जा सकते हो. nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? n टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ठीक है, लेट मी ऐड द पीपल. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. लेट अस राइट द फॉर्मूलेज फॉर द बेसिक फंक्शन. डेरिवेटिव क्या होता है? आई विल गिव यू सम बेसिक फॉर्मूलेज. ये आपको याद रखना है, रट्टा मारना है इनका. फर्स्ट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n? एनीवन नोज व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n? nx raised to n minus 1. n times x raised to n minus 1. So derivative is n times x raised to n minus 1. ये बहुत important formula है. Then what is the derivative of constant? If I say k is a constant, what is the derivative? Anyone? 0. 0. Constant का derivative होता है 0. Third thing, what is the derivative of k times x? 1. नहीं, x का डेरिवेटिव 1 होता है. अगर कांस्टेंट मल्टीपल है किसी भी फंक्शन का तो आपको क्या करना पड़ेगा? व्हेन आई राइट डिफरेंशिएशन ऑफ k टाइम्स x, आई विल टेक द कांस्टेंट आउटसाइड. आई विल टेक k डेरिवेटिव ऑफ x, k into derivative of x. What is the answer? What is the K. derivative of k? So answer is here k, where k is your constant. Okay. What is the derivative of root of x? 1 upon x. 1 upon root 2 root x. Let us see. कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है. इसका डेरिवेटिव अब निकाल ही देते हैं. रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या? एक्स रेज टू हाफ. अप्लाई द फॉर्मूला. फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करो. क्या होगा? हाफ इंटू एक्स रेज टू हाफ माइनस 1. So what is the answer? 1 by 2 into x raised to half minus 1 क्या होगा? माइनस 1 by 2. सो निगेटिव पावर क्या हो जाता है? डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव पावर बन जाता है. सो इट इज 1 by 2 into root of x. So what is the derivative of root x? 1 by 2 into root x. Let us see. 1 upon 2 root x. अभी बताओ मुझे what is the value of this? Yes, anyone?
What is the value minus of 1 upon x, x square minus 1 upon x square. so minus 1 upon x square, which is the right answer. Again you use this formula. Again you use this formula, that is 1 upon x will be equal to x raised to minus 1. What is the derivative? Minus 1, x raised to minus 1 will be minus 2. That is minus 1 upon x square. Okay, 1 by x का डेरिवेटिव होता है minus 1 upon x square. So let us see. Yes, correct, minus 1 upon x square. Let's move on to the next. Now tell me what is the value of this. If y is equal to x raised to 7 by 3, what is the dy by dx? क्या होगा वैल्यू dy by dx का? अप्लाई तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप? So let us see. Differentiation of y with respect to x, that is dy by dx हम लिखते हैं. हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? y is equal to x raised to n. What is the value? dy by dx is equal to n x raised to n minus 1. What is the value of n over here? यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? Anyone? 7 by 3. So what is the formula में पुट करो, क्या रहेगा? 7 by 3 into x raised to 7 by 3 minus 1. क्या यही होगा? If I put in the formula, so if I put n is equal to 7 by 3, what is the derivative? 7 by 3 x raised to 7 by 3 minus 1. इसको और simplify करो. What is 7 by 3 minus 1? Cross multiply. 4 by 3. 3 x raised to 4 by 3. कैसे किया? 3 into 1 3 होता है. 7 minus 3 is 4. 4 upon 3. So it is 7 by 3 x raised to 4 by 3, which is your answer. Simple है. What about the second one? 1 upon root x. कैसे फाइंड करोगे? अगेन x रेज टू n के फॉर्मेट में लाओ उसको. सो आपको क्या दिया है? वी हैव गिवन y इज इक्वल टू 1 बाय रूट एक्स. इसको कैसे लिखेंगे? x रेज टू -1 by 2. नाउ अप्लाई द डेरिवेटिव. व्हाट इज द डेरिवेटिव dy by dx? क्या होगा? n का वैल्यू क्या है यहाँ पे? -1 by 2. So -1 by 2 x raised to -1 by 2 minus 1. Again cross multiply. -1 by 2 x raised to -1 by 2 minus 1 is -1 minus 2. -1 minus 2 is -3 upon 2. So you can write this as -1 upon x raised to 3 by 2, or you can write this as -1 into x times root of x. That is x raised to 3 by 2 is equal to x into root of x. Okay, so let us see what is the answer over here. पहले 1 upon root x can be written as x raised to -1 by 2. Then again अपने को यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, n x raised to n minus 1. Apply the formula and simplify. You will get, oh sorry, मैंने 2 कहा, गड़बड़ कर दिया. It should be 2 over here. यहाँ पे जो 2 था वो यहाँ पे रहना चाहिए. So 2x root x. Okay. So 2x raised to 3 by 2. So ऐसे सिली मिस्टेक जैसे मैं करता हूँ वैसे आप नहीं करोगे एग्जाम में. ठीक है.
अभी जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो, कॉमर्स में आपने 11-12 किया है, तो आपको डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं पता होंगे। सो ये भी फॉर्मूला आप रट्टा मार दो, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, tan x will be equal to sec square x, derivative of cot x is minus cosec square x, derivative of sec x will be sec x into tan x, and the derivative of cosec x is minus cosec x into cot x. I will give you 1 minute. Remember this formula. साइन और कॉस का तो रिमेंबर करना, बाकी इतने टैन का भी रिमेंबर करना, बाकी इतने नहीं आते हैं, बट ये तीन तो हमेशा आते ही रहेंगे बार बार। साइन का होता है डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, टैन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कोसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। Okay, remember this formula again. Okay, we will move on to the next. Then 12th number, derivative of e raised to x. Derivative of e raised to x is e raised to x. Derivative of a raised to x is a raised to x into log of a. तो पहले में क्या चेंज है? Why I not written e और a में क्या चेंज है? देखो क्या होता है ना, you will get log of e is equal to 1. Always remember natural logarithm, that is base e, the logarithm value will be 1. Therefore e raised to x के साथ अगर मैंने log e डाल दिया तो वैल्यू क्या आने वाला है? log e का वैल्यू 1 आने वाला है, इसीलिए वो लेते नहीं है। बट a raised to x के साथ हम लोग लेंगे। मतलब अगर मेरे पास 2 raised to x है, 2 raised to x का डेरिवेटिव होगा, क्या होगा डेरिवेटिव? What is the derivative of 2 raised to x? 2 raised to x into log of 2. 2 raised to x into log of 2. Okay. And the last formula, that is derivative of log x is 1 upon x. Derivative of log x is 1 upon x. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Always remember log of x is equal to y, इसका मतलब होता है e raised to y is equal to x. Understood this? log of x is equal to y मतलब क्या होगा? e raised to y is equal to x. Okay. And another way से मैं क्या बोल सकता हूँ? e raised to log of x is equal to x. Okay. And log of e raised to x is equal to x. What does this mean? Logarithm and e, that is exponent, are inverse process of each other. जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर. सिमिलर वे में एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर. मतलब क्या है, सिंपली बता देता हूँ कि अगर मैंने कोई, मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव नंबर 10, उसमें मैंने 5 ऐड किया, व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट 15. अगेन आई विल सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 15, व्हाट आई विल गेट? 10 बैक.
मतलब मैं अगर सेम नंबर ऐड करता हूँ और सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वही नंबर वापस मिलेगा। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। तो अगर मैंने पहले e⁻x निकाला और उसके बाद log अप्लाई किया तो मुझे x मिलेगा, या फिर पहले मैंने log अप्लाई किया, log x लिया और फिर e⁻log x किया तो भी मुझे x बैक मिलेगा। सेम लाइक दिस मल्टीप्लीकेशन का भी वही है कि अगर मैंने 10 में से 5 को मल्टीप्लाई किया आई विल गेट 50, 50 को फिर से 5 से डिवाइड किया आई विल गेट बैक 10। ओरिजिनल मुझे वापस मिलता है। क्यों वापस मिलता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। ओके, सो ये बात ध्यान में रखो, ये हम बहुत बार यूज करने वाले हैं। ये जो चीज है ना, log x इज इक्वल टू वाई मीन्स e⁻y इज इक्वल टू x and e⁻log x is equal to x means log of and log of e⁻x is equal to x, ये हम बार बार यूज करने वाले हैं लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी। सो ये फॉर्मूले याद करके रखो, 14 formulas for the derivative. Let us move further. Yes, now tell me what is the derivative. Y is equal to 4x cube, फटाफट बताओ what is the derivative of y with respect to x? 12x square. 12x square। अब ये 12x square कैसे आया, तो पहले हम क्या करेंगे, हम 4 को बाहर निकालेंगे। 4 is a constant, we keep out 4 constant outside, we will just take the derivative of x cube. What is the derivative of x cube by formula? 4 into what is the derivative, 3x raised to 3 minus 1, 3 minus 1 कितना होता है 2, so it is 12 into x square. Okay, good. So इसका explanation जानने की जरूरत नहीं। So y is, if it is type of c into f of x, y dash x क्या करेंगे, c को कांस्टेंट को बाहर लेंगे एंड सिर्फ फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे c कांस्टेंट का वैल्यू 4 है और फंक्शन का वैल्यू x क्यूब है। तो क्या करेंगे, 4 को बाहर लेंगे, सिर्फ x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, 3x रेज टू 3 माइनस 1 एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 12x स्क्वायर। व्हाट अबाउट दिस 20 tan x? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x? Sec square x. sec square x। अभी हमने बताया tan x का डेरिवेटिव इज sec square x। सो 20 बाहर रखेंगे, tan x को डिफरेंशिएट करेंगे, tan x का डिफरेंशिएट होगा sec square x। सो आंसर क्या होगा, 20 into sec square x. So answer will be 20 into sec square x. That is your answer. Then we go to the rules of differentiation. What are the rules of differentiation? First rule is for addition, that is derivative of u plus v. U is a function of x, v is a function of x. What is the derivative? Derivative of u plus derivative of v. It is the derivative of u plus derivative of v. Apply करके देखते हैं। Suppose you want to calculate the derivative of tan x plus 2x. So what you will write? How you will solve this function? It is derivative of tan x plus. If you want, you can take out the 2 common outside and take the derivative of x also, or you can take 2 inside and carry out 2 in the next step, still it is okay. So what is the derivative of tan x? Sec square x. tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x. What is derivative of x? 1. 1. So it is 2 into 1, it is 2. So answer क्या होगा, sec square x plus 2. So let us see कैसे करेंगे. tan x is your u, 2x is your v, then first you will differentiate u plus, then you will differentiate v. So tan x का डेरिवेटिव होगा sec square x and 2x, derivative of k times x is k.
therefore it is 2. हो गया. Similarly subtraction क्या होगा बताओ. What is the derivative of u minus v? Same concept. डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी इज डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v. तो यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v. ओके, टेक एग्जांपल sin x माइनस log x. अभी आप मुझे बताओ डायरेक्टली आंसर क्या होगा. sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cos x. नहीं, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x माइनस Cos व्हाट x. इज डेरिवेटिव ऑफ log x? 1 बाय. तो यहाँ पे खत्म होता है प्रॉब्लम. लेट अस सी उन्होंने क्या किया है. इसको u लिया, इसको v लिया, which is derivative of u, that is derivative of sin x minus derivative of log x. Derivative of sin x is cos x and derivative of log x is 1 upon x. खत्म. अभी क्या करेंगे, y is equal to x square minus log ln मतलब log with base e, ln मतलब log x minus cos x plus 4x cube minus tan x. How you will find y dash? सिंपल है, आप हर एक को इंडिविजुअली अप्लाई करो. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan x. सो व्हाट इज द रूल कि अगर आप करना चाहते हो, अगर वो एडिशन के फॉर्मेट में है एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस सो ऑन, देन वाई डैश क्या होगा, इंडिविजुअली एफ डैश करो, फिर जी डैश करो, फिर एच डैश करो, जितने भी फंक्शन है उसको इंडिविजुअली आप करोगे. ठीक है, लेट मी राइट ओवर हियर. वाई डैश क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ cos x plus 4 you can take outside, just you write derivative of x cube minus derivative of tan x. अभी मुझे बताओ हर एक का वैल्यू. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x, 1 by x minus derivative of cos x is minus sin x, so minus of sin x. sin का डेरिवेटिव होता है cos, cos का डेरिवेटिव है माइनस sin, प्लस 4 is outside. What is derivative of x cube? 3x square n x raised to n minus 1 minus derivative of tan x. tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x. This is your answer. और you can take this minus minus plus sin x. बाकी का as it is रखो. यहाँ पे plus sin x होगा और यहाँ पे क्या होगा, 4 into 3 12x square और बाकी का as it is रहेगा, ये भी as it is रहेगा. ठीक है. So what is your answer? 2x plus 1 by x plus sin x plus 12x square minus sec square x. This is your answer. So let me write it. All this I will delete it and let us see what is the answer. Simplify करने के बाद I will get this answer which we have got already. Now tell me what is the derivative. आप बताओ मुझे. y डबल डैश निकालना है, y डबल डैश निकालना है, y डबल डॉट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. पहली बार का डिफरेंशिएशन क्या होगा और दूसरी बार क्या होगा. लेट मी राइट ओवर हियर. पहली बार का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, फास्ट बताओ. dy by dx is equal to x4. what is the derivative? What is the derivative of x4? n 4x x 4x cube. 4x cube. What is the derivative of 3x square? 3 into 6x. derivative of x square, 3 into 2x,
व्हाट इज द वैल्यू? 6x 3 into 2x प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 upon One. x. Then what is we want d square y by dx square? मतलब क्या करना है मुझे? इसका मतलब है मुझे d by dx ऑफ ऑल दिस टर्म, फर्स्ट ऑर्डर जो भी वाला मुझे उसको डिफरेंशिएट करना है. सो 4x क्यूब प्लस 6x प्लस 1/x, और इसको फिर से हमको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है. सो बताओ मुझे 4x क्यूब का क्या मिलेगा? 4 आउटसाइड, x क्यूब का 3x स्क्वायर, सो 4 इंटू 3x स्क्वायर, 4 इंटू 3 इज 12 इंटू x स्क्वायर प्लस 6x, द डेरिवेटिव इज 6. अभी 1/x हमने करके दिखाया था -1/x स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए. सो व्हाट यू विल गेट आंसर एज? आंसर विल बी 12x square plus 6 minus 1/x square. So let us see what is the answer they are getting. So derivative of derivative is double derivative. So पहले सिंगल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव. सो पहले डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा? 4x क्यूब प्लस 6x प्लस 1/x. अपना आंसर मैच करो, हमने जो निकाला वो मैच हो रहा है क्या? अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हाट यू विल गेट? 4x स्क्वायर प्लस 6 x रेज टू 1 -1 -1, उसको सिंप्लीफाई करके वी गेट 12x स्क्वायर प्लस 6 minus 1/x square, which we matches with the our answer which we have done over here. Okay, so simple है, derivative is very simple, बस you need a practice. What is derivative of u into v? किसी को याद है फॉर्मूला? डेरिवेटिव ऑफ u into v क्या होता है? U derivative of v plus v derivative of u. u derivative of v plus v derivative of u. So that is u into derivative of v plus v into derivative of u. Example, what is the derivative of x cube into e raised to x? Tell me the value of x cube into 3 raised to x. किसको u लेंगे, किसको v लेंगे? यहाँ पे u is equal to x cube, v equal to e raised to x. Apply the formula. पहले u को as it is लिखना है, that is x cube into derivative of e raised to x plus e raised to x को as it is लिखना है derivative of x cube. Yes, now tell me what is the derivative of e raised to x? E raised to x plus e raised to x, what is the derivative of x cube? 3x square. So it is plus 3x square into e raised to x. So it is x cube e raised to x plus 3x square e raised to x. This is your answer. Let me see what they have got. x cube को u लिया, ex को v लिया. x cube derivative of e raised to x plus e raised to x derivative of x cube. So what you will get? e raised to x को e raised to x ही होगा, और x cube का क्या होगा? 3x square होगा. सिंप्लीफाई करो. तो उन्होंने क्या किया है? e raised to x x square कॉमन निकाला है, तो आपको क्या मिलेगा? x plus 3 इन द सेकेंड ब्रैकेट. ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ये वाला आंसर लिखेगा तो भी करेक्ट है, क्योंकि इसमें से भी मैं अगर e raised to x x square कॉमन निकालता हूँ तो फर्स्ट टर्म में से x बचेगा, सेकेंड टर्म में से 3 बचेगा. ये अगर पार्ट में कॉमन निकाल रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? फर्स्ट ब्रैकेट में से x बचेगा, सेकेंड ब्रैकेट में से 3 बचेगा. व्हाट इज द वैल्यू? किसको u लेंगे, किसको v लेंगे? बताओ मुझे. व्हाट इज u ओवर हियर? व्हाट इज v ओवर हियर? u is e raised to x, v is log of x. Then e raised to x derivative of log of x plus log of x into derivative of e raised to x. Yes, tell me the answer.
What is the derivative of log x? 1 by x plus what is the derivative of ln x into e raised to x? You can also write, if you take e raised to x common, 1 by x plus log of x. 1 by x plus log of x. So let me see what is the answer. डेरिवेटिव का रूल अप्लाई किया, ई एक्स लॉग एक्स ई रेज टू एक्स 1 बाय एक्स. सो द सेम थिंग, ई रेज टू एक्स लॉग एक्स प्लस. तो इन्होंने एक्चुअली क्या किया है ना यहाँ पे, v इंटू यू रूल अप्लाई किया है. इंस्टेड ऑफ u इंटू v दे हैव टेकन सेकेंड टर्म फर्स्ट, v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v. यहाँ पे चल जाएगा बट नेक्स्ट इसमें नहीं चलेगा. What is this x square sin x? Tell me what is u will you take and what is v will you take? Anyone? X square is equals to u. So it is x square derivative of sin x plus sin x derivative of x square. Yes or no? Apply the derivative concept. X square, what is the derivative of sin x? Cos x. Cos x Plus what is derivative of x square? 2x 2x into sin x as it is. So this is your answer. So let me see. Again the same rule, 2x into sin x plus x square into cos x. 2x into sin x plus x square into cos x. डायरेक्टली अप्लाई किया, आंसर मिल गया. अगेन इन्होंने फिर से वही किया है. फर्स्ट जो टर्म है v डेरिवेटिव ऑफ u लिया, बाद में u डेरिवेटिव ऑफ v लिया. ऐसा भी चलता है क्योंकि प्लस इज कम, a प्लस बी इज सेम एज b प्लस ए, बट माइनस में ऐसा नहीं चलता. a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए. ओके, देयरफॉर ये चल जाता है u इंटू यू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, और आप पहला ले लो v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ, दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट रूल दैट इज u बाय v रूल, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उसको बोलते हैं चेन रूल. ओके, द नेक्स्ट रूल इज कॉल्ड एज चेन रूल. ओके, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. एग्जाम्पल ले लो इसके, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स अपॉन साइन एक्स. कैसे करोगे आप? e रेज टू एक्स को u लोगे, साइन एक्स को v लोगे. अप्लाई द रूल, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u that is e raised to x derivative of v upon sin x square. Okay, now tell me what will happen. What is the derivative of e raised to x? Solve it. Sin x derivative of e raised to x क्या होगा? e raised to x अप्लाई करो, माइनस ई रेज टू एक्स. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स. अप्लाई किया, माइनस डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? ई रेज टू एक्स अगर कॉमन निकाला तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बचेगा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. अगेन एक और सम करते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. u क्या है और v क्या है? यहाँ पे u इज इक्वल टू साइन एक्स, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. v क्या है? एक्स स्क्वायर है. अप्लाई द रूल, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विच इज कॉस एक्स इंटू u दैट इज साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x अपॉन x square into square. Apply the derivative and simplify. Is this easy or difficult?
सेम चीज अप्लाई किया, v क्या है एक्स स्क्वायर लिखा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ u, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है cos x लिखा, माइनस u क्या है साइन एक्स एज इट इज लिखा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ v इज 2x यहाँ पे लिख दिया और डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, सो अप्लाई दैट फॉर्मूला, यू गेट दिस, x को कॉमन निकाला तो आपको x⁴ में से एक x कम हो जाएगा, सो दैट क्या बचेगा, ये x और यहाँ पे 4 का पावर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, इसलिए सो एक x दोनों तरफ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन किया, सो दैट यू विल गेट x cos x minus 2 sin x upon x3, that is the value of your derivative. प्रैक्टिस करो, डिफरेंशिएशन का जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजी रहेगा. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज चेन रूल. चेन रूल क्या होता है कि अगर आपका जो फॉर्मेट है वो बेसिक फंक्शन नहीं है, कोई और फंक्शन है, दैट इज chain rule will apply for the composite function. Okay, so composite function क्या होता है, we first find the basic function involved and we will apply the rule. For example, what is this function, sin cube x square, what is the basic function here, सी यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ, इट इज साइन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 3, मतलब है एक्स रेज टू एन के फॉर्मेट में हुआ, तो एक्स रेज टू एन के फॉर्मेट में हुआ तो मुझे क्या लिखूंगा, इट इज 3 टाइम साइन एक्स स्क्वायर, ओके, रेज टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर. ओके, अभी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साइन इज अ बेसिक फंक्शन है, बट साइन एक्स होता तो मुझे आंसर पता था, बट यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है, सो साइन का आंसर क्या होता, कॉस एक्स, सो यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 ऑफ साइन एक्स क्यूब स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर. मतलब जब तक आपको सिंपल फंक्शन नहीं मिलता है तब तक आप डेरिवेटिव करते जाओगे. सो फाइनल आंसर क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, एंड इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर मिलेगा वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा. सो यहाँ पे बेसिक फंक्शन क्या है, एक्स रेज टू एन, बेसिक फंक्शन इज x रेज टू n, fx रेज टू n, sin x स्क्वायर रेज टू क्यूब. ठीक है, if y is indirectly function of x, y is a function of t and t is a function of x, then y can be written as f of g of x. t के जगह पे g of x रखा, and the derivative क्या है, y is equal to t square, t is equal to sin x, then what will be the y, y का वैल्यू क्या होगा, sin x स्क्वायर, t के जगह पे sin x रखा. अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, how we will differentiate this differentiation, the chain rule says it is f dash of gx into g dash of x. So let me write the chain rule, y is a function of x, x is a function of t, then I will use the chain rule like this, dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. तो dt dt कैंसिल हो जाएगा, dy by dx बचेगा. ओके, सो व्हाट इज हियर, व्हाट इज dy by dt, y is equal to t स्क्वायर, dy by dt क्या होगा, आप मुझे बताओ, इससे आंसर बताओ, t स्क्वायर है, so dy by dt is 2t into dt by dx, t is equal to sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin Cos x का डेरिवेटिव cos x,
Again I will substitute the value of t. t क्या है? sin x. So it is 2 sin x into cos x. 2 sin x into cos x. This is your final answer, dy by dx. So dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. अगर ऐसे फॉर्मेट में है then y dash is equal to f dash of g of x into g dash of x. अभी आप मुझे इससे आंसर बताओ क्या है? y is equal to f of gx. यहाँ पे gx क्या है? sin x. y is equal to sin x square. मतलब x स्क्वायर के फॉर्मेट में है, so it is 2 times x, but 2 times x, x के जगह पे क्या है? sin x. So it is 2 times sin x and the derivative of this sin x. Derivative of this sin x is cos x. So either you can use in this format dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx, or you can use this format, that is if y is equal to f of gx then y dash is equal to f dash gx into g dash of x. वर्जन भी आप सीख लो, पहले उससे मैं ये डिलीट कर देता हूँ so that you will get to know better. dy by dx is equal to dy by dt into dt by dp into dp by dq into dq by dx. ऐसे भी लिख सकते हैं. y is a function of t, t is a function of p, p is a function of q and q is a function of x. Then चारों के डिफरेंशिएशन आपको ऑर्डर में लिख देंगे, फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, dt dt dp dp dq dq और क्या बचेगा? dy by dx. ठीक है, this is how the chain rule is operating. This is how the chain rule is operating. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. What is this function? Derivative of root of 3x raised to 7 minus 8x plus 11. इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? What is the basic function here? ये जो अंदर का है चीज वो बेसिक फंक्शन है. So I will write this d by dx of 3x raised to 7 minus 8x plus 11 raised to 1 by 2. What is the derivative? It is of the form sum bracket raised to 1 by 2. क्या होगा डेरिवेटिव? 1 by 2 into root of this, that is 3x square minus 8x plus 11 into derivative of this function, derivative of 3x raised to 7 minus 8x plus 11. What is the derivative now? बताओ मुझे. 1 upon 2 ये as it is रखो, 3x square minus 8x plus 11 into derivative बताओ. what is 3x raised to 7? 3 as it is बाहर, 7x raised to 7 का डेरिवेटिव क्या होगा? 7x raised to 6, so it is 21 7x x raised to 6 minus 8x का डेरिवेटिव 8 and 11 का डेरिवेटिव is 0. कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव is 0. So you get the answer as 21 x raised to 6 minus 8 upon 2 times this bracket, that is 3x square minus 8x plus 11. This completes your answer. So let me see उन्होंने कैसे किया. ओके, बेसिक फंक्शन क्या है? रूट एक्स. रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 upon 2 रूट एक्स. व्हाट इज रिप्लेसिंग एक्स इन द क्वेश्चन? एक्स की जगह पे क्या है यहाँ पे? 3x raised to 7 minus 8x plus 11, ये वाला चीज. तो इसको हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा? पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव लिखेंगे 2 times दिस इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस. आंसर करो. 1 upon 2 into derivative this 21x raised to 6 minus 8 plus 0. So answer is like this, 21x raised to 6 minus 8 upon 2 times this derivative.
Let me see one more example, then we will stop. What is the basic function here? इसको कैसे लिख सकता हूँ? sin 4x रेज टू 3 लिख सकता हूँ क्या? sin Yes. 4x रेज टू 3 लिख सकते हैं हम लोग. फिर क्या होगा? 3x रेज टू स्क्वायर. 3x स्क्वायर आपका डेरिवेटिव हो जाएगा. बट x के जगह पे क्या है? sin 4x है. x के जगह पे यहाँ पे sin 4x है. तो क्या होगा? 3 ब्रैकेट में sin 4x रेज टू 2. ओके, लेट अस सी. sin 4x क्यूब. इज दिस अ बेसिक फंक्शन? नो. बेसिक फंक्शन क्या है? x रेज टू n. तो x रेज टू n को डिफरेंशिएट करो. n x रेज टू n माइनस 1. फिर क्या करना है? x के जगह पे यहाँ पे क्या है? sin 4x. ठीक है. फिर क्या करेंगे? पहले तो n x रेज टू n माइनस 1 लिखो. x के जगह पे sin 4x डाल दिया. अभी डेरिवेटिव ऑफ sin 4x. अभी sin 4x का डेरिवेटिव कैसे आएगा? 3 sin 4x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin 4x क्या होगा? cos 4x. बट x के जगह पे अभी क्या है? 4x है. तो 4x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. और 4x का डिफरेंशिएट क्या आएगा? 4x का डिफरेंशिएट आएगा 4. डेरिवेटिव ऑफ 4x यानी इन्होंने डायरेक्ट कर दिया. इसका वैल्यू आता है, इसका वैल्यू आता है 4. सो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 12. cos 4x एज इट इज लिखा और sin 4x का स्क्वायर किया. सो दिस इज हाउ यू विल डू द डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल. ये क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल. एक और एग्जांपल लेते हैं. tan क्यूब x स्क्वायर. इसको कैसे लिखेंगे आप मुझे बताओ. हाउ यू विल राइट? इस साइड लिखता हूं. इट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x स्क्वायर. पावर क्या होगा? tan x स्क्वायर रेज टू 3. व्हाट इज द डेरिवेटिव? 3 इंटू tan x स्क्वायर स्क्वायर. x रेज टू n का डेरिवेटिव निकाला. फिर अभी क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट. व्हाट इज द ब्रैकेट? डेरिवेटिव ऑफ tan x स्क्वायर. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x? tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x. sec स्क्वायर x. Sec square. ओके, so it is sec स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. बट tan x नहीं, यहाँ पे x स्क्वायर है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर भी जोड़ना पड़ेगा. ठीक है. तो क्या होगा? 3 tan स्क्वायर x. आपको बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है जब आपको डेरिवेटिव करना है ना, इस टाइप का चेन रूल का. वी हैव टू बी पेशेंट. 3 tan x स्क्वायर, सॉरी tan x स्क्वायर रेज टू 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर. उसको क्या लिखेंगे? एज इट इज लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? 2x. 2x. इसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर लिखोगे. सो दिस इज हाउ यू विल डू द डेरिवेटिव इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. ठीक है. लेट मी राइट ऑल दिस. बेसिक फंक्शन तो नहीं है. x रेज टू n इज द बेसिक फंक्शन. x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है nx रेज टू n माइनस 1. दिस इज योर x. tan x square is your x, new value of x. Okay. Differentiate with respect to x also. Okay. So it is 3 tan x square into sec square x square into 2 times x, which is your final answer. So this, let's stop here. This completes what I wanted to teach you for the differentiation. In the next lecture we will see integration. Let us try to complete integration also in the one shot. Okay. So see you in the Friday. Okay. Thank you, sir. Okay. Welcome. Bye, sir.